So the deadline is 8th Feb. If you guys will start submitting, I can start reviewing then, and then I can provide you feedback. Okay, so let us start. Today we'll be starting with Microsoft Excel. If anyone has any doubts about Microsoft Word, then please do let me know. I can explain whatever is left. Okay, so let us start with Microsoft Excel today. Excel is a very important tool for any kind of calculations or data management that we do. So usually any kind of data is first processed or seen in Excel, and then we take it forward to either to visualize it or to manipulate it or analyze it. So today we'll get a small introduction, a brief introduction about how things work in Excel, and the rest of it we will take as we do more assignments. So this is the opening page for Microsoft Excel. It is very similar to what we saw in Microsoft Word. Everyone remembers the first page, the home page for Microsoft Word? Yes, sir. Yeah, so it's very similar. So we have the files over here, and if you want to pin some files, you can pin it from here, and then you can look at those files here. Also, over the recent tab, we have the templates tab. So just like Word, we have templates in Microsoft Excel. If you will click on more templates, then you can see these different kinds of templates. And the amount of templates that you will find in Microsoft Excel are very wide. So here only you can see there is a seasonal photo calendar, personal monthly budget, or you have an invoice, or you have a weekly attendance report. Any kind of data which has to be recorded or analyzed can be done in Microsoft Excel. So feel free to play with these templates, and also you can create your own personal sheets where you can manage your schedule or your classes. So let me take a very simple example. So let's take this calendar, academic calendar. I click on the template and it will give me a brief description of what the calendar is about. It says use this accessible calendar each day to keep track of your school year. So we'll click on create, and you have a calendar over here. Okay, it's a very nice looking calendar that you can see. Also, you can change the year and month over here. So very simply we'll look at how Excel works. So यहाँ पे 2021 लिखा हुआ है. Let's suppose I want the calendar for this month, that is January 2022. So what I'll do, I'll simply put the year 2022, and I'll select the month from here, and now I have the entire month mapped over here, starting from 1st January, that was a Saturday, to today 31st January, which is a Monday. And in every cell you can go ahead and write the information that you want to. Let's suppose on 26th we had the Republic Day, so we write Republic Day. Okay, on 29th, let's suppose there was a test, so we can write a test over here, and you can manage it in your Excel file. You can create a custom calendar right over here in Excel. Similarly, you have the next month
that is February, March, April, and so on. So this is one of the templates that we see. Let me close it for now. I'm not going to save it. So that is the template, and you need to experiment to learn how what all other templates are available in Excel. So let us jump in to a new file. I'll select a blank workbook, and here we have the sheet. So let us first understand what is the basic interface. Just like Word or any other Microsoft program, you have the tabs over here. जैसे Chrome में हम tabs open करते हैं, वैसे ही options के लिए यहाँ पे अलग अलग tabs available हैं. और आप notice करोगे कि यहाँ पे Word के मुकाबले जो tabs हैं वो ज़्यादा हैं या कम हैं. The number of tabs in Excel is less or more? The more, I think. More? I think it's less. Let me open Word. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Just skip Zotero. That's a tab which I added. And here we just have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? Almost similar tabs. However, you will find that less options are available for formatting and more options are available for data analysis. So कुछ tabs जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं which is formulas tab और data tab. ये वाले tabs Microsoft Word में आपको नहीं मिलेंगे. बाकी review, view, help tab, page layout, insert, ये सारी चीज़ें आपको Excel में भी मिलेंगी और Microsoft Word में भी मिलेंगी. Okay. All right. So now let us concentrate on this portion which is just below the tab. तो टैब का जो कलर है वो थोड़ा सा लेस ग्रे है. जो उसके नीचे वाला एक सेक्शन है उसका कलर ज़्यादा डार्क है, ग्रे डार्क है. नाउ what we see over here is called the name box. तो नेम बॉक्स में क्या होता है? नेम बॉक्स में हर सेल का एक नाम आता है. So let me just zoom in so that we can see it clearly. तो ये मेरा A column है. This is B column. Similarly, we have lot of columns. But if I click on any cell, so what does B3 over here mean? कौन बता सकता है? Column B and third row. Very good. So column B में third row के सेल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है. जो भी सेल आप सेलेक्ट करोगे उसका नाम यहाँ पर नजर आ जाएगा. ठीक है? So that is a very big feature. And if you select a few cell, मान लो मैंने ये इतने सारे सेल सेलेक्ट करे तो B2 नज़र आ रहा है क्योंकि B2 से मैंने सिलेक्शन स्टार्ट किया. ठीक है? सो B2 से लेकर whatever you start selecting, it will only show B2 because you started your selection from B2. Now उसी के बगल में हमारे पास यहाँ पर एक सेक्शन है जहाँ पर एक क्रॉस लगा हुआ है, एक टिक है और एक FX के नाम से एक बटन मिल रहा है हमको. सो इस बटन को कहते हैं इंसर्ट फंक्शन. इसका फंक्शन चेंज होता रहता है. और बगल में हमको यहाँ पे देखने को मिलता है एक टेक्स्ट बॉक्स जैसा स्पेस. सो वॉट एवर यू राइट हियर, सो इफ आई राइट रुपेश, देन इट विल ऑल्सो राइट इट इन द टैब. तो जब कभी आपको टैब के ऊपर प्रेस करके चेक करना है कि इस सेल में क्या नज़र आ रहा है या फिर what is written over here, then you can go to the formula tab and it will show you in plain text that what is written. अब अगर मैं रुपेश को रेड कलर में कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, तो यहाँ नीचे शीट में नज़र आएगा ऐसा फॉर्मेटेड
टेक्स्ट, बट ऊपर प्लेन टेक्स्ट में हमें नजर आ रहा है रुपेश. एवरीबडी गॉट दैट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yeah. नाउ अब आते हैं ये फाइनल जो हमारी शीट है, उसमें हमने कॉलम्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, रोज आइडेंटिफाई कर लिए हैं. सबसे नीचे यू कैन सी देयर इज समथिंग कॉल्ड शीट. तो अगेन जस्ट लाइक क्रोम में हम टैब्स खोलते हैं और बंद करते हैं, वैसे ही यहाँ पर शीट 1 है. तो एक एक्सेल की फाइल में एक शीट भी हो सकती है, बहुत सारी शीट्स भी हो सकती हैं. सो इफ आई वांट मोर शीट्स देन आई कैन क्लिक प्लस और शीट 2 यहाँ पर आ जाएगी. सिमिलरली इफ आई क्लिक मोर देन शीट 3, शीट 4 कैन हैव. सो जस्ट लाइक यू हैव अ नोटबुक जिसमें अलग अलग पेजेस होते हैं, अलग अलग शीट्स होती हैं, वैसे ही आपकी एक्सेल की फाइल में अलग अलग शीट्स अवेलेबल हैं. So a lot of sheets can be made and they can be renamed also. तो जैसे यहाँ पे sheet 1 लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार क्लिक करके डबल क्लिक करूँगा तो what you can see now it has become editable. Now I can write Rupesh or I can write introduction and you can give a name to every sheet that you are using. ओके. सो सबसे पहले तो हम इन्हीं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं आज होम टैब में कि हमको क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है. आई विल जस्ट फोकस ऑन थिंग्स विच आर डिफरेंट. ठीक है, जो हमने वर्ड में डिस्कस कर लिया है दैट इज गोइंग टू वर्क इन अ सिमिलर वे, बट वी आर गोइंग टू लुक एट ऑप्शंस विच आर डिफरेंट इन एक्सेल. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट. पेस्ट जो हमारे ऑप्शंस हैं, पेस्ट ऑप्शंस हैं, वो बहुत सिमिलर से ही हैं. इनके बारे में और क्लैरिटी तब आएगी जब हम इसको डेटा में यूज़ करना शुरू करेंगे. ठीक है, सो वेरी सिमिलरली हाउ इट वर्क्स इन वर्ड. फॉर्मेट पेंटर भी वैसे ही काम करता है. लेट्स सपोज आई राइट अ टेक्स्ट मंडे, देन आई राइट ट्यूसडे एंड देन आई राइट Wednesday. Now if I format Monday as in red color, italics and bold, now if I want to apply the same formatting, what I can do, I can select Monday, click on format painter और यहाँ पे आपको लाइंस मूव करती हुई नज़र आ रही हैं. आपका कर्सर भी चेंज हो गया है. अब आपको पॉइंटर में एक ब्रश मार्क भी नज़र आ रहा है. तो आप ट्यूसडे को अगर सेम फॉर्मेटिंग में डालना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन ट्यूसडे एंड इट विल बिकम द सेम फॉर्मेट विदाउट डूइंग द 3 steps ऑफ बोल्ड, इटैलिक्स एंड चेंज द कलर टू रेड. सिमिलरली आई कैन अप्लाई इट ऑन वेडनेसडे ऑल्सो. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ये सारे ऑप्शंस के बारे में पहले से ही हमें पता है. यहाँ पे जो एक नया ऑप्शन आया है वो है बॉर्डर का ऑप्शन. सो थोड़ा सा और जूम करता हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी इट क्लियरली. सो लेट्स सपोज मंडे के आसपास आई वांट टू क्रिएट अ बॉर्डर. अभी जो ग्रे लाइंस नज़र आ रही हैं वो रेफरेंस के लिए हैं. अगर मैं इस पेज को प्रिंट करता हूँ तो ये लाइंस ग्रे कलर की लाइंस नज़र नहीं आएंगी. अगर मुझे मंडे के आसपास एक बॉक्स को दिखाना है सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो टू होम टैब और यहाँ पर बॉर्डर्स फंक्शन में मैं एक लेट्स सपोज आई चूज अ थिक आउटसाइड बॉर्डर. तो नाउ यू कैन सी कि मंडे के आसपास एक बॉर्डर हो गया. नाउ दिस बॉर्डर जब आप इस शीट को प्रिंट करेंगे तो आपको वो बॉर्डर नज़र आएगा. बाकी ट्यूसडे और वेडनेसडे के आसपास क्योंकि सिर्फ ग्रे लाइंस हैं, यू विल नॉट सी अ बॉर्डर. Similarly, you can change the border. Let's suppose you don't want the top border, then you can remove the top border. If you want no border, only the bottom border, you can click and now it's a only bottom border. I hope it is visible.
यस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो बॉर्डर्स के बारे में पता चल गया. इनका यूज़ हम बाद में करेंगे जब हम अपनी शीट्स को फॉर्मेट करेंगे. अभी आगे बढ़ते हैं. लेट अस टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड रैप टेक्स्ट. ये सारे ऑप्शंस भी हमको समझ में आएंगे. पहले हम यहाँ पे बात करते हैं रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर का क्या मतलब है. सो लेट्स सपोज आई राइट दिस लाइन, Monday is the first day of the week. Okay? So अभी क्या हुआ है, मैंने सेल में जितनी जगह थी उससे कहीं ज़्यादा यूज़ करी है, तो मेरे सेल के बाहर निकल गया है ये टेक्स्ट. ओके, बट इट डज नॉट मीन कि वो सी सेल में आ गया है या डी सेल में आ गया है या ई सेल में आ गया है. सी सेल खाली है. कैसे पता लगेगा? यहाँ ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है. बट जब मैं B2 को सेलेक्ट करता हूँ जिसमें हमने पूरा टेक्स्ट लिखा है, तो पूरी लाइन नज़र आ रही है, मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, राइट. बट इफ़ आई गो टू C2, दैट इज़ द नेक्स्ट सेल, वहाँ पे खाली है. डी में भी खाली है. तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि बी सेल का टेक्स्ट सी और डी और ई सेल में फ्लो हो रहा है, बट इट इज स्टिल द टेक्स्ट विच इज इन बी. ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि ट्यूसडे को मैं सी कॉलम में यहां पर डालूं. सो आई विल डू अ कंट्रोल एक्स. मैंने यहां से कट कर लिया है और मैंने कंट्रोल वी करके अब C2 में पेस्ट कर दिया. तो बाकी का टेक्स्ट मंडे इज द फर्स्ट वीक वाला, जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, वो टेक्स्ट कहाँ गया? हु कैन टेल? सर वहीं पे है, बस दिख नहीं रही. बस दिख नहीं रहा है. ठीक है. सो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने बी कॉलम को इतनी ही जगह दी है. मान लो हम उसकी जगह इंक्रीज करते हैं. कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बी और सी कॉलम ऊपर हेडिंग रो जो बनी हुई है उसके ठीक बीच में जाएंगे तो ऐसा सिंबल आ जाएगा. इस सिंबल में हम क्या देख रहे हैं? एक बीच में ब्लैक कलर की लाइन है और साइड से दोनों साइड की तरफ एरोज जा रहे हैं. नाउ I can click and drag it. तो अब उस सेल के पास और जगह है क्योंकि मैंने पूरे कॉलम का विड्थ चेंज कर दिया. I can make it shorter also. Okay. So you can adjust the column width using this option. ठीक है. नाउ लेट्स सपोज हम बस उतनी जगह चाहते हैं जितनी ये लाइन दिखाने के लिए ज़रूरी है. हम बी को ना बहुत ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं जैसे ऐसे, और ना बहुत ज़्यादा छोटा करना चाहते हैं जैसे ऐसे. तो क्या करना है? यहाँ पर वापस आइए. इस साइन को दिखना चाहिए. यहाँ पे जब आप इस ऑपरेशन को करेंगे तो यहाँ पे वो साइन दिखना चाहिए. अब डबल क्लिक कर दीजिए तो अब आपको उतनी ही जगह मिल जाएगी जितनी उसके लिए ज़रूरी है. तो अगर मैं ज़्यादा सेल की जगह भी बढ़ा दूंगा और डबल क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा. सो दिस इज कॉल्ड एक्सक्यूज मी सो दिस इज कॉल्ड द ऑटो एडजस्टमेंट. आपकी कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है जब आप इसको डबल क्लिक करते हैं. तो छोटा है तो बड़ा कर देगा, बड़ा है तो छोटा कर देगा. एवरीबॉडी अंडरस्टूड कॉलम विड्थ? Yes, sir. नाउ मान लीजिए कि हम बी सेल को इससे ज़्यादा जगह नहीं दे सकते. पूरे बी कॉलम को इससे ज़्यादा जगह अलाउड नहीं है, पर हमें लाइन को तो पूरा दिखाना है. हमें दिखाना है मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, पूरी लाइन यहाँ पर आनी चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं? हम
रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जैसा वहां पे वो दिखा रहा है, ऊपर लिखा हुआ है ए बी और नीचे आ गया सी। सो जैसे ही मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो वो सेल की हाइट को एडजस्ट करके पूरे टेक्स्ट को यहां पर दिखा देगा। ओके, तो चूंकि हम इस बी कॉलम को इससे ज़्यादा जगह विड्थ में नहीं दे सकते, तो एक्सेल ने क्या किया, सेकेंड रो की हाइट को बढ़ा दिया ताकि वो एडजस्ट हो जाए। नाउ आई गेस योर माइक इज ओपन आदित्य। ऑल्सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं उनका कैसे यूज करा जाए। तो अलाइनमेंट में लेफ्ट, सेंटर और राइट तो हम पहले से जानते हैं, करते हुए आए हैं। एक्सेल में आपको 3 एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी मिलते हैं, विच इज अपर, मिडल एंड लोअर। तो अब ट्यूसडे के साथ में ऐसा करते हैं, अगर ट्यूसडे अभी कहाँ नजर आ रहा है, अलाइनमेंट क्या है उसकी, बॉटम अलाइन, बॉटम अलाइंड है और लेफ्ट साइड पे है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसे मिडल में लाना चाहता हूँ तो ये मिड अलाइनमेंट ले सकता हूँ, टॉप पे रखना चाहता हूँ तो ये टॉप अलाइनमेंट ले सकता हूँ, उसमें भी लेफ्ट, सेंटर, राइट। सो अगर आपको किसी टेक्स्ट को सेल के बीचों बीच दिखाना है, साइडवेज भी और वर्टिकली भी, तो आप मिडल और सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेल के बीचों बीच नजर आएगा। ऑल राइट, ऑल राइट। सो हमने यहाँ पर रैप टेक्स्ट के बारे में जाना और कैसे हम अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में जाना। तो जैसे हमने कॉलम की हाइट, कॉलम की विड्थ को एडजस्ट किया था, वैसे ही हम हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस पर भी डबल क्लिक करेंगे तो इसको फिट कर देगा, यानी कि अगर मैंने कम जगह दी हुई है, कम हाइट दी है रो को, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके उसको बड़ा कर देगा, और अगर मैंने ज़्यादा हाइट दी हुई है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके उसको कम कर देगा। सो दैट इज द यूटिलिटी ऑफ हाइट एडजस्टमेंट। ऑल राइट, नाउ let me introduce you to the merge and center button। अब मान लीजिए कि मैं वेडनेसडे के बारे में भी एक लाइन लिखता हूँ। वेडनेसडे इज अ डे ऑफ गुड फॉर्च्यून। ओके, आई हैव रिटन दिस लाइन। तो सेम चीज हुई है इसके साथ में, क्योंकि सामने वाले सेल में, अगले सेल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, तो ये अभी उस सेल की जगह को घेर कर इस टेक्स्ट को डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, मैं चाहता हूं कि ये लाइन पूरी भी नजर आए और मुझे रो की हाइट भी ना बढ़ानी पड़े, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, so here you have the option of merging cell, यानी कि आप दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक साथ मर्ज करके एक सेल बना सकते हो। तो मैं इनके आसपास बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि आपको ठीक से नज़र आए। तो अभी हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें ये नज़र आ रहा है कि आसपास के सेल्स तो ठीक है, बस ये वेडनेसडे इज़ अ गुड डे ऑफ फॉर्च्यून, इज़ अ डे ऑफ गुड फॉर्च्यून वाला जो टेक्स्ट है वो 2 सेल्स में आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, वी विल सेलेक्ट ऑल द 3 सेल। हमने B6, C6 और D6 को सेलेक्ट कर लिया। नाउ गो टू दिस बटन और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा,
वो तीनों सेल सो वो तीनों सेल्स एक हो गए, मर्ज होकर एक सेल बन गया है और उसका नाम क्या है? B6। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो सीधा E6 आता है, B6 के बाद सीधा E6 आ जाता है, क्योंकि मैंने इन सारे सेल्स को मर्ज कर दिया। और मर्ज होने के बाद एक और चीज़ हुई, मर्जन सेंटर को दबाने पे क्या था? अलाइनमेंट चेंज हुई, यस, वो सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइनमेंट हो गई। मान लो आप सेंटर अलाइनमेंट नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि बस ये तीनों सेल एक हो जाए। सो सेलेक्ट द सेल एंड गो टू मर्ज अक्रॉस। तो ये तीनों सेल सेलेक्ट होके मर्ज हो जाएंगे, बट आपका टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेम रहेगी। सिमिलर रिजल्ट इज अचीव्ड इन मर्ज सेल्स। वापस से एक बार दिखाता हूँ। तो हमने तीनों सेल्स को सेलेक्ट किया और मैंने किया मर्ज सेल, तो सेम रिजल्ट हमको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो मर्ज किए हैं सेल्स उनको चेंज करूँ, तो आई कैन ऑल्सो गो टू अनमर्ज सेल्स और मेरे सेल्स वापस B6, C6 और D6 बन जाएंगे। तो बात समझ में आई है? मर्जन सेंटर का फंडा समझ में आया है? Yes, sir. कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस नंबर टाइल को समझने की कोशिश करेंगे। आज का पूरा ऑब्जेक्टिव यही है। तो लेट मी पुट इट हियर। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। सो किसी भी सेल पे आप सेलेक्ट करोगे तो उसके लिए पहले वो क्या दिखाएगा? यहाँ पर जनरल। सो लेट मी राइट जनरल। तो जनरल फॉर्मेट जो है वो आपके अलग अलग नंबर्स के लिए यहाँ पर डाला जाता है। तो मान लीजिए हमने कोई भी नंबर लिखा, लेट्स सपोज वी हैव रिटन 4386। सो 4386 ऐसे नज़र आ रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी आपके सेल में सिर्फ नंबर्स होंगे तो उसका अलाइनमेंट कैसा होगा? यहाँ कैसा है अलाइनमेंट? Right. राइट अलाइन। राइट अलाइनमेंट है। जब कभी आप टेक्स्ट लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जनरल, तो उसका अलाइनमेंट हो जाएगा लेफ्ट। अगर मैंने यहाँ पर 4386 के आगे ए लिख दिया तो आप देखोगे कि ये पूरे के पूरे सेल को टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहा है या नंबर की तरह? टेक्स्ट की तरह। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, एक्सेल आपको अपने आप ही बता देता है कि मैं इसको नंबर मान रहा हूँ या नहीं मान रहा हूँ। तो अगर आपने कुछ लिखा है सेल में और वो लेफ्ट अलाइंड हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें नंबर के अलावा भी कुछ और है। तो अब मैं जहाँ से जब ए हटा देता हूँ तो वो वापस राइट अलाइंड हो जाता है। चलिए, नाउ लेट मी कॉपी दिस। तो कॉपी करने का हिसाब बहुत अच्छा है यहाँ पर एक्सेल में। व्हाट यू कैन डू इज़ गो टू दिस प्लेस। अगर आपने एक ही नंबर सेलेक्ट किया हुआ है तो वो बार बार उसको कॉपी कर देगा। ठीक है, आपको कंट्रोल C और कंट्रोल V करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कॉपी हो जाएगा। सो पहला ऑप्शन दैट वी हैव इज नंबर। तो अगर मैं नंबर फॉर्मेट लेता हूँ तो ये क्या है? फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। तो अभी 4386 में दिखा रहा है जनरल। तो अगर मैं उसको नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ तो क्या चेंज हुआ? Decimals. डेसिमल्स आ गए। तो ये हमारा रिजल्ट है और चेंजेस यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं।
तो क्योंकि ये तो डिफ़ॉल्ट है तो उसको छोड़ देते हैं। नंबर फॉर्मेट जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल्स ऐड हो जाएंगे। सो डेसिमल्स आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे जो दो टाइप के बटन्स गिवन हैं उनसे डेसिमल्स को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको डेसिमल्स इंक्रीज करने हैं तो ये पहला वाला बटन है, आप चाहो तो डेसिमल्स को इंक्रीज करते जा सकते हो जितनी भी पोजीशन तक आपको चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं डेसिमल्स को डिक्रीज करना चाहता हूँ, अभी 4 डेसिमल पॉइंट्स हैं, मैं इनको कम करना चाहता हूँ तो आई कैन डिक्रीज द डेसिमल्स टू इवन 0। बट ध्यान रखिएगा अब ये नंबर फॉर्मेट में काम कर रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड करेंसी। सो ये मैं यहाँ पर आकर करेंसी को सेलेक्ट करता हूँ तो क्या चेंज आया, सर करेंसी फॉर्मेट में आ रहा है। करेंसी का सिंबल ऐड हो गया। बाकी सब कुछ नंबर फॉर्मेट जैसा ही है बट करेंसी का साइन आ गया। और भी कुछ ऐड हुआ है, ध्यान से देखो, कॉमर्स। कॉमा लग गया। ठीक है, तो कॉमा का जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है वो ये है दैट इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लार्ज इज़ द नंबर। ठीक है, पढ़ने में आसानी हो जाती है जैसे ही हम कॉमा लगाते हैं। तो दैट इज़ हाउ करेंसी सिंबल एंड कॉमा आर एडेड टू योर फिगर। अब आप चाहो तो इसको करेंसी के सिंबल को चेंज भी कर सकते हो। सो करेंसी का सिंबल चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर फॉर्मेट की विंडो को खोलेंगे। नंबर फॉर्मेट की विंडो को खोला है, यहाँ पे आपके सारे फॉर्मेट्स हैं, कैटेगरीज हैं, यहाँ पे सिंबल है। तो सिंबल में जाके आप कोई भी सिंबल ले सकते हो। जैसे मान लो कि हम सेलेक्ट करते हैं, लेट मी सी इफ वी हैव द रूपी साइन। यस, सो यू कैन सी कि यहाँ पर रूपी सिंबल है। सो वॉट एवर सिंबल यू सेलेक्ट इट इज़ गोइंग टू शो अप हियर। रूपी सिंबल मैंने लगा दिया है तो अब रूपी सिंबल यहाँ पर आ रहा है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट फॉर्मेट। अगला फॉर्मेट क्या है हमारा, अगला फॉर्मेट है अकाउंटिंग। तो मैं इस पे अकाउंटिंग फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ और इसका जो सिंबल है वो भी मैं चेंज करके रूपी कर देता हूँ। क्या चेंज आया है फॉर्मेट चेंज करने की वजह से? सर करेंसी सिंबल लेफ्ट अलाइन हो गया अलग से सेपरेटली और नंबर्स राइट अलाइन है। और एक और छोटा सा चेंज है, दोनों फिगर्स को ऊपर नीचे देखोगे तो नजर आएगा। साइज इंक्रीज हो, फिर से सेल में स्पेसिंग, सेल में स्पेसिंग चेंज हो गई है। अब आप देखोगे कि ये जो ज़ीरो का सिंबल है, जो लास्ट डिजिट था, सेकंड प्लेस डेसिमल था, वो यहाँ पर बॉर्डर से ज़्यादा नज़दीक है, ये बॉर्डर से थोड़ा दूर है। ठीक है, सो दीज आर द चेंजेस विच हैपन। सिंबल ऑन लेफ्ट, मोर स्पेसिंग। तो इसका कुछ फ़ायदा होगा हमको सिंबल को लेफ्ट साइड पे लेने का? डू यू सी एनी पोटेंशियल बेनिफिट? पर नंबर्स डिस्टिंक्टली मतलब दिख जाएंगे। नंबर्स दिख जाएंगे और हमको कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पर अगर इसका जो करेंसी का सिंबल था मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ $,
और नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर 54। सो अगर कोई बहुत दूर से इस शीट को देख रहा है तो कंफ्यूजन हो सकता है, क्या ऊपर भी 54386 लिखा हुआ है, राइट? सो देयर इज अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्यूजन विच इज हैपनिंग। तो ये उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अकाउंटिंग सिंबल फॉर्मेट बनाया गया है, सो दैट यू डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन डिजिट्स एंड योर करेंसी सिंबल। चलिए आगे का फॉर्मेट क्या है? आगे है हमारे पास शॉर्ट डेट। तो शॉर्ट डेट, सो लेट्स सपोज हम यहाँ पे आज की डेट डालते हैं। सो आई राइट, और किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो 1/31/2022 एंड आई विल गो सेलेक्ट शॉर्ट डेट। तो आपकी जो डेट है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। उसी तरीके से अगर मान लो कि मैं डैश लगा के लिखता हूँ 1/31/2022, वो अपने आप उसको शॉर्ट डेट फॉर्मेट में ले लेगा। उसी तरीके से अगर मैं ईयर पहले लिख देता हूँ और डेट को बाद में लिख देता हूँ तो इसने रिकॉग्नाइज नहीं किया। नाउ इट इज रिकॉग्नाइजिंग। तो आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। पैटर्न क्या है? या तो आप YYY यानी ईयर, वो हार्ड डिस्क में बनी होती है, DD लिखिए, नहीं तो आप डे, मंथ और ईयर डालिए, तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा कि क्या फॉर्मेट है डेट का। अब चाहो तो आप इसको शॉर्ट डेट का जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नंबर विंडो को खोलेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग फॉर्मेट्स लिखे हुए मिले हैं, आप उसमें से कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हो। लॉन्ग डेट अगला फॉर्मेट है हमारा, तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया एंड नाउ आई गो टू लॉन्ग डेट। तो जब कभी आपके सेल में ज़्यादा टेक्स्ट होगा और सेल छोटा होगा तो ऐसे हैशटैग हैशटैग नज़र आएगा। करना क्या है? या तो सेल को ऐसे बड़ा कर दो, नहीं तो डबल क्लिक कर दो ताकि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। सो नाउ यू कैन सी मंडे January 31st 2022। Similarly, you have format for time percentage. तो अगर आपको टाइम शो करना है तो यू कैन सेलेक्ट टाइम एंड इट विल शो यू द टाइम फॉर वॉट एवर टाइम यू आर सेलेक्टिंग। देन वी हैव द परसेंटेज। सो 4386 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? 438600.00 परसेंटेज। सो इसको सॉल्व करोगे तो क्या नंबर आएगा? 4386। राइट। तो किसी भी नंबर को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, मान लो मैं लिखना चाहता हूँ 10%, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं 10 यहाँ पे लिखूँ और फिर परसेंटेज वाले साइन पे क्लिक कर दूँ, वो हो जाएगा 1000%। ठीक है, क्योंकि उसको सॉल्व करने पे 10 आएगा। मुझे क्या लिखना पड़ेगा अगर मुझे 10% दिखाना है यहाँ पे? तो .1। नाइस। सो 0.1 यहाँ पे लिखेंगे। लेट मी रिमूव दिस, मेक इट जनरल। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.1। नाउ इफ आई कन्वर्ट इट टू परसेंटेज इट इज गोइंग टू शो मी 10%, राइट? सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि परसेंटेज सेलेक्ट होने पर क्या करता है एक्सेल। देन वी हैव फ्रैक्शन। .14 किस पॉपुलर फ्रैक्शन की वैल्यू है? पाई। पाई की वैल्यू, पाई। राइट? तो अगर
मैंने 3.14 लिखा है यहाँ पर, तो अगर मैं उसे जाके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये 22/7 या 3 1/7 यहाँ पे दिखाने लगता है। तो आप फ्रैक्शन में भी नंबर्स को लिख सकते हो, दैट इज पॉसिबल। लेट अस नाउ टॉक अबाउट साइंटिफिक। साइंटिफिक थोड़ा हम कम यूज करेंगे, बट जान लेना अच्छी बात है। अगर मैं इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करता हूँ, सो इट हैज शॉर्टन्ड द नंबर। साइंटिफिक नोटेशन इसलिए होता है कि आप एक बड़े से नंबर को छोटा करके दिखाना चाहते हो। तो लेट मी मेक इट अ बिग नंबर 4386, और इसको मैंने बहुत बड़ा नंबर बना के दिखा दिया। सो ऑटोमेटिकली आप देखोगे ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देता है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के दो फायदे हैं। पहला तो आप स्पेस सेव कर रहे हैं, और दूसरा आपको इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए कम टाइम लगेगा अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में रखोगे। बट दिस ओनली अप्लाइज टू वेरी लार्ज नंबर्स। तो हम ध्यान रखेंगे कि ये अलग अलग फॉर्मेट्स क्या हैं। सबको समझ में आए हैं फॉर्मेट्स? किसी को कोई कन्फ्यूजन? नो No, सर। sir. ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ओवरलोड हो जाएगा एक्सेल का। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे थोड़ा फॉर्मेट एज टेबल का, सेल स्टाइल का। तो अपने से एक्सप्लोर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। इट विल बी अ लिटिल फास्टर फॉर मी टू कवर ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। बाकी एक्सेल में जैसे कहते हैं हाथ गंदे करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको डेटा लेकर खुद कुछ एक्सेल में ऑपरेशंस करने होंगे। कुछ कुछ चीज़ें मैं सिखाना शुरू करूँगा अगली क्लास से। तो लिस्ट देख लो यहाँ पर। पहले हम चलेंगे पेरोल में, देन probably we will talk about depreciation accounting, फिर हम बात करेंगे लोन एंड लीज स्टेटमेंट की, देन वी विल टॉक अबाउट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो ये 4 चीज़ें हमें कवर करनी है आपके सिलेबस में। तो अगली क्लास से थोड़ा इंट्रोडक्शन फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स का देंगे, और फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट विद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ऑलराइट, सो सी यू गाइस टुमारो। सर फ्राइडे क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। हाँ, फ्राइडे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है, मैं भेजता हूँ। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑलराइट, Thank you, sir. ओके बाय सर। बाय बाय।